So hey guys, in this video we are going to start with the maxillary molars. इसके पहले हमने प्रीमोलर्स कैनाइन सारे कंप्लीट कर लिए हैं. सो लेट्स स्ट्रेट ड्राइव इनटू द वीडियो. तो स्टार्ट करने से पहले वी विल डिस्कस अबाउट द कॉमन फीचर्स ऑफ द molars. Okay, so now you can see the maxillary arch. So here we can locate our the maxillary molars. ये देखिए, this is our first maxillary molar, second, and it is our third. Okay, so we can see it is our first premolar, second premolar, it is our canine, and they are the incisors. Okay, so to study anatomy of tooth, the basic requirement is the observation. ठीक है, हम जितना अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, it will help us to memorize it and to remember it. Okay, so let's discuss about the basic features. Okay, so here we can see that look at the arch from below. यहाँ से हम easily बोल सकते हैं कि the maxillary जो molars हैं, they are quite large in comparison to the other tooth. Okay, and we can observe also the point that जिस तरह से हम posteriorly move कर रहे हैं, वैसे ही जो maxillary molars की size है वो भी decrease हो रही है. Like we can see, ये जो first molar है, it is our second molar, it is our third molar. First molar is quite large than the second molar, and second molar is quite large than the third molar. So when we move posteriorly, we can see a decrement in the size of the molars. Okay, here we can see the first molar. एक basic feature जो देख लीजिए, first molar जो है वो पूरे arch में सबसे बड़ा tooth है. Maxillary first molar is the largest tooth in the maxilla. Okay, and there is also a important point to remember that which one is the longest tooth. ये तो हमारा largest हो गया maxillary first molar, but the longest is our canine. We can see it like that कि ये देखो, अगर हम लेंथ वाइज देखें, मैक्सिलरी कैनाइन की लेंथ देखिए और ये हमारी मोलर की. ओके, हम इजीली बोल सकते हैं कि जो कैनाइन है उसकी लेंथ ज़्यादा है. ओके, सो द कैनाइन इज लॉन्गेस्ट and the first molar is largest. Okay, these are the basic features. और basic feature अगर हम observe करें तो it would be कि like molars के basically 3 roots है ना, 2 बक्कल. अगर मैं एक टूथ को सेपरेट करूँ, we can see that the जो first molar है इसके 2 roots हैं. These are the buccal roots. We will discuss about the aspects. These are the buccal roots and one of it is ये देखिए, ये एक lingual. Okay, यहाँ पे हमारे पास 4 cusp हैं इसके. Okay, 1 2 3 4. We will name them also. Okay, and there is also a one more cusp, that is cusp of Carabelli, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में. ठीक है, we can see it. ये देखिए. Okay, we will talk about it also. So this is the basic features of maxillary molars. Maxillary molars की अगर हम basic वो देखें कि like ये क्या function क्या होता है इनका. देखिए, posteriorly जितने भी tooths हैं ना, they basically function as grinding the food. Okay, it also support the muscles of mastication and okay, these are the basic features of it. So let's start with the buccal aspect of the first maxillary molar. Okay, देखो बस buccal aspect में अगर हम observe करें, we can see the 3 roots. Okay, buccal aspects means the aspect which is toward the buccal cavity. Okay, look, these are our 2 roots है ना, these are our lingual buccal roots. Okay, and the root which we can see the behind of them, this root, this is our lingual, this is our lingual root. Okay, देखो
बक्कल एस्पेक्ट में हमको सामने दो कस्प दिख रहे हैं. ओके, टू नेम द टू कस्प विच वी कैन सी फ्रॉम द बक्कल एस्पेक्ट, उसके लिए सबसे पहले हमको जानना है कि मीजियल एंड डिस्टल एस्पेक्ट हमको डिसाइड करना है. ठीक है. ओके, एंड हाउ डू वी डिसाइड दैट. देखो, हमें ऑब्जर्व करना है रूट की टिल्ट. ओके, देखो रूट जिस तरफ टिल्टेड है वो हो जाएगा हमारा डिस्टल. ओके, ऑलवेज. एंड दिस वन वुड बी द मीजियल. ओके, as this is our buccal, these two are buccal cusp, and this one, as it is toward the mesial, it is our mesio-buccal cusp, and this one would be disto-buccal cusp. Okay, very easy. We can see the cervical line. Okay, we can see कि cervical line जो है वो properly straight नहीं है, it is slightly convex towards the root. Okay, okay. Here we can see okay, हम इसको कहेंगे मीजियल आउटलाइन, और ये जो आउटलाइन है दिस वुड बी आवर डिस्टल आउटलाइन. ओके, ओके. सो जब मीजियोबक्कल कस्प है इसके दो स्लोप्स हैं, ये देखो. दिस वुड बी आवर डिस्टल स्लोप, एंड ये जो होगा ये होगा हमारा मीजियल स्लोप. उसी तरीके से जो डिस्टोबकल कस्प है उसका ये वाला स्लोप होगा जो कि ये मीजियल की तरफ है, तो मीजियल स्लोप, और ये हो जाएगा हमारा डिस्टल स्लोप. ओके, मीजियोबकल कस्प में अगर हम ध्यान दें तो ये जो स्लोप जो एक एंगल बना रहा है इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल. ओके, इट इज़ ऑब्ट्यूज. एंड डिस्टोबकल कस्प का जो ये स्लोप है, these two slopes make a angle which is almost 90 degree. Okay, so this is also a feature, and there is we can see एक groove है. okay, और ये groove कहाँ पे, बक्कल साइड में, तो it is बक्को डेवलपमेंटल groove. this is our बक्को डेवलपमेंटल groove. very easy. और एक चीज़ अगर हम स्लाइटली ऑब्जर्व करें कि ये देखो इनकी जो कस्प लेंथ में डिफरेंस क्या है. ठीक है, ये देखो मीजियोबक्कल कस्प जो है उसकी लेंथ स्लाइटली इट इज़ मोर देन द डिस्टोबकल कस्प विच इज़ नॉर्मली हम इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं. ओके, दिस वन इज़ ऑल्सो अ फीचर. ओके, वी कैन सी द अदर कस्प ऑल्सो बकल एस्पेक्ट से, है ना. ओके, वी कैन ईजिली सी, अगर हम इस क्राउन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, दिस पार्ट वुड बी कॉल्ड द इंसाइजल थर्ड. okay, this part would call the incisal third. ये होगा हमारा middle third, and it would be our cervical third. okay, अगर हम मीजियल आउटलाइन की बात करें, ये हमारा मीजियल आउटलाइन है दिस वन, और ये हमारा डिस्टल आउटलाइन है. क्राउन में जो मीजियल कॉन्टैक्ट एरिया है, मीजियल कॉन्टैक्ट एरिया, ये टोटली लाई करता है जंक्शन पे, किसके, इंसाइजल थर्ड और मिडल थर्ड के जंक्शन पे. हियर वी कैन सी द क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर क्लियरली. ओके, और अगर हम डिस्टल कॉन्टैक्ट एरिया की बात करें तो वो कहाँ दिखेगा हमको, मिडल ऑफ द मिडल थर्ड. हियर मिडल ऑफ द मिडल थर्ड. ओके, तो व्हाट आर द कॉन्टैक्ट एरिया, तुमको पता ही है क्या है. जो मीजियल कॉन्टैक्ट एरिया है मतलब जहाँ पे जो इसके बाद वाला और पहले वाला जो टूथ है वो इसके कांटेक्ट में आएगा, और जो डिस्टल कांटेक्ट एरिया है वो उसके बाद वाले टूथ के कांटेक्ट में जो आएगा. ओके, नाउ वी नो द पोजीशंस ऑफ द कांटेक्ट एरिया. मीजियल कांटेक्ट एरिया कहाँ पे लाई करता है, एट द जंक्शन ऑफ मिडल एंड इंसाइजल थर्ड, और जो डिस्टल कांटेक्ट एरिया है वो कहाँ लाई करता है, मिडल ऑफ द मिडल थर्ड. वी कैन सी इट क्लियरली. नाउ डील विद द lingual aspect of the maxillary tooth, maxillary molar. ओके, सो इसका सबसे पहले ही फीचर है कि जो लिंगुअल रूट है इट इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द 3 रूट्स. ओके, जो लिंगुअल रूट है इट इज़ लॉन्गेस्ट. ओके, अब इसके बाद अगर सर्वाइकल
लाइन की बात करें तो इट इज़ ऑलमोस्ट स्ट्रेट, ठीक है, ऑलमोस्ट ज़ीरो डिविएशन फ्रॉम द पाथ, ओके। और अगर हम देखें डेवलपमेंटल ग्रूव, ठीक है, क्राउन पे जो डेवलपमेंटल ग्रूव है ये देखो, इट ऑलमोस्ट स्टार्ट फ्रॉम द मिडल एंड टर्न्स टूवर्ड द डिस्टल। नाउ वी ऑलरेडी नो दैट दिस इज डिस्टल एस्पेक्ट और ये जो होगा हमारा मीजियल एस्पेक्ट, ओके। So there are these are the two cusps, okay. We know about the contact area. So these are the cusp. ये देखो, ये जो हमारा cusp है ये क्या होगा, डिस्टोलिंगुअल cusp, और ये होगा हमारा मीजियोलिंगुअल cusp, ठीक है। ऑब्वियसली हमको यहाँ से दिख रहा है कि जो मीजियोलिंगुअल cusp है वो बड़ा है डिस्टोलिंगुअल cusp से, बल्कि मीजियोलिंगुअल cusp जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट कस्प इन द मोलर, इन द मैक्सिलरी मोलर, ओके। देखो अब जो मीजियोलिंगुअल कस्प है ना, इसमें हमको एक इरेगुलर डेवलपमेंटल ग्रूव भी दिख रहा है ये, ठीक है। जिस इरेगुलर डेवलपमेंटल ग्रूव की वजह से एक और कस्प का क्रिएशन हो रहा है, जिस कस्प का नाम है कस्प ऑफ कैरिबेलाई। क्या है, कस्प ऑफ कैरिबेलाई, ओके, ठीक है। सो देयर आर टोटल फाइव कस्प, मीजियोलिंगुअल कस्प, डिस्टोलिंगुअल कस्प, बको डिस्टल एंड बको मीजियल कस्प, ओके। एंड देयर इज द फिफ्थ कस्प इज कस्प ऑफ कैरिबेलाई, इट इज आवर फिफ्थ कस्प, ओके, विच इज फॉर्म्ड बाय द इरेगुलर डेवलपमेंटल ग्रूव, ओके। सो जो मीजियोलिंगुअल कस्प है ना, वो लिंगुअल एस्पेक्ट का ऑलमोस्ट 3/5, ओके, 3/5 कवर करता है, और जो डिस्टोलिंगुअल कस्प है वो 2/5, ओके। सो वी आर डन विद द लिंगुअल का एस्पेक्ट, देन वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट। स्टार्ट विद द मीजियल एस्पेक्ट ऑफ द मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर। सो पहला क्वेश्चन है कि हाउ विल वी डिसाइड दैट कौन सा पार्ट मीजियल और कौन सा डिस्टल है। सो द बेसिक इजी ऑब्जर्वेशन है, वी कैन सी, हमने पहले वीडियो में बात करी थी, यहाँ पे हमको इजीली दिख जाता है कस्प ऑफ कैरिबेलाई, ओके। तो कस्प ऑफ कैरिबेलाई इज प्रेजेंट ऑन द मीजियोलिंगुअल कस्प, ओके। नाउ वी नो कि कौन सा रूट कौन सा, यहाँ पे हमको डिसाइड करना है कि बक्कल और लिंगवल कौन सा है। हमको पता है ये हमारी लिंगवल रूट है और ये हमारे बक्कल रूट है, तो ऑब्वियसली दिस साइड वुड बी बक्कल और ये लिंगवल साइड। ये कस्प क्या है हमारा, मीजियोलिंगुअल कस्प, और ये क्या है, बक्को लिंगुअल कस्प, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये देखो ये कौन सा है, ये मीजियो बक्कल रूट है ना, इट इज़ आवर मीजियो बक्कल रूट। क्या हमको यहाँ पे डिस्टो बक्कल रूट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि मीजियो बक्कल रूट की जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक और डिसाइडिंग फीचर हो गया मीजियल एस्पेक्ट के लिए कि हमको इस तरफ से सिर्फ मीजियल रूट ही दिखती है, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रेस्ट ऑफ सर्वाइकल लाइन। सर्वाइकल लाइन देखो ऑक्लूजली टिल्टेड है ना, ओके। अगर हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, वी नो कि फर्स्ट वन इज सर्वाइकल थर्ड, ओके। इसके बाद वाला जो है ये आ जाता है मिडल थर्ड, हम इस चीज़ के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, और दिस वन इज आवर ऑक्लूजल थर्ड, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर ऑन द बक्कल आउटलाइन एंड लिंगुअल आउटलाइन, ओके। लिंगुअल आउटलाइन में अगर हम क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर देखें, देखो तो हमको क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर कहाँ मिलेगा, नीचे की तरफ, जो कि है ये देखो इस पोर्शन में, दिस मिडल थर्ड में, है ना। ये हो जाएगा हमारा क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर इन लिंगुअल एस्पेक्ट, ओके। और अगर इसका क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर हमको याद हो, ये लाई करता है, दिस पार्ट लाई करता है सर्वाइकल थर्ड में, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द, ये देखो
मीजियल डेवलपमेंटल ग्रूव है जो कि बहुत थोड़ा सा है. ओके, देयर इज अ वेरी लाइट मीजियल डेवलपमेंटल ग्रूव. ओके, नाउ हाउ डू वी मेजर द बक्कोलिंगुअल कस्प लेंथ. कस्प या फिर बक्कोलिंगुअल जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, कैसा करते हैं. फ्रॉम द बक्कल कस्प टिप टू द लिंगुअल कस्प टिप. देखो ये हो जाएगा हमारा लिंगुअल कस्प टिप और ये हो जाएगा हमारा बक्कल कस्प टिप. इन दोनों के बीच की जो लेंथ है ना, इसे हम कहते हैं बक्कोलिंगुअल डायमेंशन. दिस इज आवर बक्कोलिंगुअल डायमेंशन. ओके, now let's also talk about, so now we also know that अगर हमको याद हो मीजियल कॉन्टैक्ट एरिया है ना, मीजियल कॉन्टैक्ट एरिया कहाँ लाई करता था. इट ऑलमोस्ट लाइज ऑन द मिडल थर्ड. ओके, हियर दिस इज आवर मीजियल, दिस इज आवर मीजियल कॉन्टैक्ट एरिया, दिस इज आवर मीजियल कॉन्टैक्ट एरिया. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द डिस्टल एस्पेक्ट नाउ. ओके, देखो डिस्टल एस्पेक्ट में हमको क्या होता है, मेन फीचर जो है हमको यहाँ पे तीनों रूट्स विजिबल हैं. ये देखो, ये अगर ये डिस्टल है, दिस इज आवर बक्कल साइड, दिस इज आवर लिंगुअल, है ना. तो अगर ये हम डिस्टल एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं तो दिस रूट वुड बी आवर बक्को डिस्टल रूट. ओके, देखो यहाँ पे हमको मीजियो बक्कल रूट भी दिख रहा है ना, स्लाइट ऑफ, और ये हमारा लिंगुअल रूट. तो मोस्टली 3 रूट्स आर विजिबल. अगर इसके सर्वाइकल लाइन के बारे में बात करें, इट इज़ लेस कर्व्ड, है ना, इट इज़ लेस कर्व्ड देन द मीजियल साइड. मीजियल साइड का जो सर्वाइकल लाइन है इट इज़ मोर कर्व्ड. ओके, यहाँ पे जो देख रहे हो डिस्टल डेवलपमेंटल ग्रूव है, इट इज़ ऑल्सो मोर स्मॉल देन द मीजियल डेवलपमेंटल ग्रूव. यहाँ पे हमको लगभग ऑक्लूजल सरफेस थोड़ा बहुत दिख ही जाता है. ओके, ये देखो यहाँ पे जो ये हमको दिख रही है ना, ये क्या है, इट इज़ आवर सर्वाइकल रिज. अगर हम बक्कल एस्पेक्ट को अगर इस तरफ से करें, टर्न करें, तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये सर्वाइकल रिज जो है, अगर इसको हम बक्कल या फिर डिस्टल साइड से, मीजियल या फिर डिस्टल साइड से देखें तो हमको ये सर्वाइकल रिज दिख जाएगी. मतलब जस्ट बीनीथ द सर्वाइकल लाइन देयर इज अ प्रोट्यूबरेंस, है ना, रिज. ओके, ऑलमोस्ट बाकी जो फीचर है सिमिलर है टू द mesial side of the tooth. Now let's move on to the occlusal surface. So now the most important part जो कि है occlusal surface. ठीक है, जितनी भी मुश्किल होती है वो हमें occlusal surface में होती है, to define all the ridges, all the fossas, है ना, all the grooves. तो we will now discuss about the occlusal part. Okay, इसे हम जितना इजीली हो सके समझने की कोशिश करेंगे. ओके, सबसे पहला हमें पॉइंट है कि हमें डिसाइड करना है मीजियल, डिस्टल, बक्कल एंड लिंगुअल. ओके, देखो इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए सबसे मेन फीचर हो जाएगा कस्प ऑफ कैरेबलाई. अगर हमें कस्प ऑफ कैरेबलाई मिल जाएगा तो हम बेसिकली चारों एस्पेक्ट को ईजिली कवर कर सकते हैं. ये देखो अ लिटिल ऑफ, ये देखो कस्प ऑफ कैरेबलाई हमें दिख जाएगा, है ना. ओके, ये जो कस्प ऑफ कैरेबलाई कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मीजियो लिंगुअल कस्प. मतलब दिस कस्प इज आवर मीजियो लिंगुअल कस्प. ओके, अगर ये मीजियो लिंगुअल कस्प है तो ये जो है ये हमारा होगा लिंगुअल एस्पेक्ट, और ये हो जाएगा हमारा बक्कल, ये हो जाएगा हमारा मीजियल, और ये हो जाएगा हमारा डिस्टल. ओके, हम देखो अब इस तरीके से हम सारे कस्प की नेमिंग कर सकते हैं. ये कौन सी कस्प होगी, डिस्टोलिंगुअल कस्प. ये कौन सा कस्प होगा, बक्को डिस्टल कस्प. वेरी गुड. और ये कौन सा कस्प होगा, मीजियो बक्कल कस्प. ओके, नाउ वी नो द ऑल द 4 कस्प. ये देखो ये हमारा कस्प ऑफ कैरेबलाई, जिसके बेसिस पे हमने पूरे जो इसके एस्पेक्ट्स हैं वो डिसाइड करे हैं. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्रूव्स. आई विल चेंज द कलर. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द ग्रूव. ये हमको पता है ये कौन सी ग्रूव है, दिस इज आवर बक्कल डेवलपमेंटल ग्रूव. ये हमें याद है लिंगुअल डेवलपमेंटल ग्रूव, है ना. ये देखो ये मीजियल डेवलपमेंटल ग्रूव और ये डिस्टल डेवलपमेंटल ग्रूव, जो कि हमने सारे एस्पेक्ट्स में कवर किया था. एंड और एक ग्रूव है, ये देखो ये जो बीच से जा रहा है ट्रांसवर्सली, ये है ट्रांसवर्स ग्रूव.
एंड देखो 1 2 3 4 5 देयर आर 5 ग्रुप्स. वन मोर ग्रुप इज द विच मेक्स द कस्प ऑफ कैरेबेलाई, है ना. हमने पढ़ा था कि इरेगुलर डेवलपमेंटल ग्रुव जो होती है वो फॉर्म करती है कस्प ऑफ कैरेबेलाई. तो देयर आर टोटल 6 ग्रूव्स. देयर आर 6 ग्रूव. ओके, देयर आर 6 ग्रूव्स. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ रिज. ओके, एक रिज होता है. देखो ये देख रहे हैं हम जो मीजियोलिंगुअल कस्प है, दिस एंड बक्को डिस्टल कस्प कि इनकी जो ये रिज है ये दोनों ऑब्लिकली मीट करते हैं एंड दे फॉर्म अ ऑब्लिक रिज. दे फॉर्म अ ऑब्लिक रिज. ओके, दे फॉर्म अ ऑब्लिक रिज. ओके, अब हम डिसाइड करते हैं कि इसमें हमें देखने हैं फोसास वगैरह. ओके, लेट्स चेंज द कलर. ओके, देर आर बेसिकली 4 फोसास. ओके, देर आर बेसिकली 4 फोसास. एक फोसा होगा जो कि होगा मेजर सेंट्रल फोसा. ठीक है, मेजर सेंट्रल फोसा. ये देखो इट लाइज हियर. ओके, ये प्रेजेंट होता है यहाँ पे. दिस इज आवर मेजर सेंट्रल फोसा. अब इस ऑब्लिक रिज के डिस्टली एक फोसा प्रेजेंट होगा, है ना. ठीक है ना, इसे हम कहेंगे डिस्टल फोसा. दिस वन डिस्टल फोसा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? डिस्टली टू द ऑब्लिक रिज. ये हमारा हो जाएगा सेंट्रल फोसा, ये हो जाएगा हमारा डिस्टल फोसा. वेरी गुड. देयर आर 2 मोर फोसास. लुक, यहाँ पे एक ट्रायंगुलर फोसा प्रेजेंट है. किस तरफ? मीजियल साइड की तरफ. तो इसकी नेमिंग बड़ी इजी है, मीजियल ट्रायंगुलर फोसा. एंड देयर इज वन मोर फोसा हियर जिसका नाम हो जाएगा डिस्टल ट्रायंगुलर फोसा. वेरी गुड. सो हमने काफ़ी ज़्यादा कवर कर लिया इसका. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पिट्स. ओके, देयर आर 3 पिट्स जिसकी नेमिंग हम करते हैं. देखो यहाँ पे ये जो पिट है ये हो जाएगी सेंट्रल पिट. ठीक है, यहाँ एक पिट होगी जो कि हो जाएगी डिस्टल पिट, और यहाँ पे एक पिट होगी जो कि नाम है मीजियल पिट. पिट कुछ नहीं है, बेसिकली पॉइंट पे एक ग्रूव है. ओके, दीज आर द 3 पिट्स, 6 grooves, 4 fossas, and now we cover the occlusal aspect. It is very easy to determine. Now let's deal with the maxillary second molar. Okay, तो यहाँ पे मैं maxillary second molar को सेपरेट करूँगा. इसके बेसिक जो आइडेंटिफाइंग प्रिंसिपल्स है ना वो देख लेते हैं. ओके, तो लेट्स द फर्स्ट फीचर इज कैन वी सी द कस्प ऑफ कैरेबेलाई? नो, इट इज़ लेस एविडेंट इन द सेकेंड मोलर. सो ये पहला आइडेंटिफाइंग फीचर हो जाएगा. सो यहाँ पे जो रूट्स हैं हम देख सकते हैं ये लेस डाइवर्जेंट हैं. ठीक है, लाइक लुक एट द डाइवर्जेंस ऑफ द रूट, इट इज़ वेरी लेस इन कंपैरिजन टू द मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर. अगर इसको हम देखें, लाइक लुक एट द मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर एंड द डाइवर्जेंस ऑफ द रूट, लुक एट इट, इट इज़ वेरी लार्ज. ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड प्रिंसिपल आइडेंटिफाइंग फीचर्स. नाउ जो इसके डिस्टल कस्प हैं, डिस्टल साइड कौन सा होगा? ये, और ये हमारा होगा मीजियल, बिकॉज वी कैन सी द टिल्ट ऑफ रूट, है ना. रूट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द डिस्टल साइड. तो ये जो 2 कस्प होंगे 1 and 2, दीज आर द डिस्टल कस्प्स. सो जो ये डिस्टल कस्प होते हैं ये लेस डेवलप्ड होते हैं इन कंपैरिजन टू द मीजियल कस्प्स. ओके, तो जो क्राउन है वो बेसिकली स्मॉलर है. ठीक है ना, ओवरऑल इट इज़ लेस इन डायमेंशन देन द प्रीवियस फर्स्ट मैक्सिलरी मोलर. ओके, so let's move on to the aspects of it. Start with the buccal aspect of the second maxillary molar. अब जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ना हम उसे कंपेयर करेंगे फर्स्ट मोलर से, और इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट मोलर वी विल स्टडी विद द एस्पेक्ट्स ऑफ द सेकेंड मोलर. ओके, सो लेट्स डिसाइड. पहले हम किसी भी एस्पेक्ट को पढ़ने से पहले उसके बाकी जो एस्पेक्ट है वो डिसाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी हम बक्कल एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं. ओके, सो उसके पहले लेट्स डिसाइड द मीजियल और डिस्टल. रूट की टिल्ट देखो तो इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स दिस साइड, तो इसका मतलब दिस इज आवर डिस्टल. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट. और ये हो जाएगा हमारा मीजियल. और ये एस्पेक्ट कौन सा है जो हम पढ़ रहे हैं? वो है बक्कल एस्पेक्ट. ओके,
So this cusp is our distobuccal cusp, and this is our mesiobuccal cusp. हम इसे ऑलरेडी देख के बोल सकते हैं, जो डिस्टोबकल कस्प है इट इज स्मॉलर इन साइज, है ना, देन द मीजियोबकल कस्प. तो मीजियोबकल कस्प इज लार्जर देन द डिस्टोबकल कस्प. डिस्टोबकल कस्प क्योंकि स्मॉलर इन साइज है, वी कैन सी अ बिट ऑफ डिस्टल सरफेस ऑल्सो. ओके, we can talk about the cervical line. It is slightly convex towards the apex of the tooth. इसके जो रूट्स हैं ये दे आर वेरी क्लोजर, है ना, इनके बीच में डाइवर्जेंस जो है वो कम है, जो कि हमने थोड़ी देर पहले देखा. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द बक्कल कस्प. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि देर इज नो एविडेंट ऑफ फिफ्थ कस्प. ठीक है ना. लेट्स मूव टू द लिंगुअल एस्पेक्ट ऑफ द टूथ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिंगुअल एस्पेक्ट. ठीक है, हियर वी कैन सी जो इसकी लिंगुअल रूट है वो सबसे बड़ी है. इट इज़ कॉमन फॉर ऑल द मोलर्स. वी हैव टू डिसाइड विच वन इज मीजियल एंड डिस्टल. सो वी कैन रियली सी कि रूट की टिल्ट जो है सारी तीनों रूटों की इस तरफ है, तो इट इज़ आवर डिस्टल, और ये होगा हमारा मीजियल. थ्रू दिस वी कैन नेम द कस्प. सो ये कौन सा कस्प होगा? यस, मीजियो लिंगुअल कस्प. वेरी गुड. और हमें याद होगा कि मीजियो लिंगुअल कस्प में कस्प ऑफ कैरिबलाई हुआ करता था फर्स्ट मोलर में, जो कि यहाँ पे इनएविडेंट है ना, इट इज़ नॉट प्रेजेंट हियर. और ये कौन सा होगा? डिस्टो लिंगुअल कस्प. वी कैन ईजिली सी कि मीजियो लिंगुअल कस्प है वो ज़्यादा बड़ा है इससे, है ना. ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ डिस्टो लिंगुअल कस्प वी कैन सी द डिस्टल कस्प ऑल्सो. कौन सा कस्प? डिस्टो बकल कस्प. ओके, दिस इज़ वेरी इजी टू से. यहाँ पे हम देख सकते हैं सर्वाइकल लाइन जो इट इज़ ऑलमोस्ट स्ट्रेट, है ना. ओके, तो इट इज़ ऑल अबाउट द लिंगुअल एस्पेक्ट. तो इससे हम लिंगुअल और बकल से हम ये डिफाइन कर पाए कि जो डिस्टल कस्प्स हैं इसके वो लेस एविडेंट है, वो पुअरली डेवलप्ड है इन कंपैरिजन टू द मीजियल कस्प्स. ओके, वी विल स्टडी अबाउट द मीजियल एस्पेक्ट. मीजियल एस्पेक्ट के ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मिलते हैं टू द फर्स्ट मोलर. ठीक है, वहाँ पे जो हमने पढ़ा था वी कैन टेक इट हियर ऑल्सो. बस यहाँ पे एक पॉइंट डिफर करती है, वो है डाइवर्जेंस ऑफ द रूट. ओके, यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ रूट इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट मोलर इज लेस. सो दिस इज ऑल अबाउट द मीजियल एस्पेक्ट. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डिस्टल. इन द डिस्टल कस्प, ओके, इन द डिस्टल कस्प द डिस्टोबकल कस्प. ठीक है, दिस इज आवर डिस्टोबकल कस्प. और इसके बीनीथ जो इस तरफ है इट वुड बी आवर मीजियोबकल कस्प. वी कैन सी द मीजियोबकल कस्प. एंड इम्पॉर्टेंट फीचर्स इज कि जो डिस्टोबकल कस्प है इट इज़ स्मॉलर देन द मीजियोबकल कस्प. मतलब मीजियोबकल कस्प इज लार्जर देन द डिस्टोबकल कस्प, और ऑलमोस्ट द सेम, ऑलमोस्ट द फीचर आर सिमिलर. So let's deal with the occlusal surface. Here in the occlusal surface of the second maxillary molar, all the features are same. Also, for to know the all the grooves and depressions and pits which are explained very clearly in our part 2 video of maxillary first molar. वहाँ पे जाके आप सब देख सकते हैं. वहाँ पे occlusal surface का it is pretty similar. यहाँ पे बस एक चीज़ हमको पता करनी है कि जो इसकी लुक ये होगा हमारा डिस्टल एंड ये होगा हमारा मीजियल. दिस इज़ आवर बक्कल एंड इट इज़ आवर लिंगुअल. जो बक्को लिंगुअल डायमेंशन है इट इज़ मोर देन द मीजियो डिस्टल डायमेंशन. डिस्टल के जो कस्प्स हैं दीज आर स्मॉलर. ओके, दिस इज़ ओनली द बेसिक फीचर्स विच वी नीड टू नो. और बाकी जो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैक्सिलरी थर्ड मोलर. सो आई होप आपने सेकेंड और फर्स्ट मोलर पढ़ लिया होगा, तो इसलिए मैक्सिलरी थर्ड मोलर पढ़ना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. एंड दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग टूथ. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. सो हेयर वी कैन सी दिस इज़ आवर फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर एंड दिस इज़ आवर थर्ड मोलर. पहला पॉइंट जो हमें पता है कि
जैसे जैसे हम पोस्टीरियरली मूव करते हैं, मोलर्स की जो साइज़ है वो कंपैरेटिवली डिक्रीज़ करती है ना। सेकेंड पॉइंट हमें पता है कि जो इनके रूट का कन्वर्जेंस है ना, या फिर रूट का डाइवर्जेंस, रूट के डाइवर्जेंस जो है वो भी कम होता रहता है। फर्स्ट मोलर में रूट में जितने डाइवर्जेंस थी ना, उससे कम सेकेंड मोलर में होता है। एंड लेट्स सी द थर्ड मोलर। लुक एट द थर्ड मोलर, लुक एट द रूट ऑफ इट। लुक, यहाँ पे बेसिकली कन्वर्जेंस, जो डाइवर्जेंस है वो बहुत कम है ना। ये जो 3 रूट है ना, इट एक्ट्स लाइक अ सिंगल रूट, है ना। तो यहाँ पे जो बाइफर्केशन हमको दिख रहे होंगे ना, जहाँ पे ये रूट डिवाइड हो रहे हैं, इट इज़ प्रेजेंट इन द अपाइकल थर्ड, इट इज़ प्रेजेंट इन द अपाइकल थर्ड। ओके, तो कंसिडरेबली जो थर्ड मोलर है, इट वेराइज इन साइज, है ना, एंड रिलेटिव पोजिशंस टू द अदर टीथ। मतलब फॉर एग्जाम्पल इसकी जो पोजीशन है ना, इट वेराइज वेरी मच। समटाइम्स वी कैन सी कि सेकेंड मोलर, थर्ड, इट इज़ आवर फर्स्ट मोलर, थर्ड मोलर कभी कभी ऐसे ग्रो कर जाता है, समटाइम्स लाइक दिस, है ना, समटाइम्स स्ट्रेट। तो बेसिकली इसकी कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है, ठीक है ना। इट शोज द मोस्ट वेरिएशन। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये जो हमारे थ्री अपर मोलर्स एंड 3 लोअर मोलर्स है ना, इन 6 मोलर्स में से सबसे ज़्यादा वेरिएशन मैक्सिलरी थर्ड मोलर दिखाता है। ओके, तो इसका फंक्शन क्या है? बेसिकली इसका जो फंक्शन है, इट हेल्प्स और सप्लीमेंट्स द सेकेंड मोलर इन ग्राइंडिंग और शेयरिंग और व्हाटएवर, है ना। इसका जो फंडामेंटल डिज़ाइन है थर्ड मोलर का, वो सिमिलर है ना, फर्स्ट मोलर एंड सेकेंड मोलर से सिमिलर है। ओके, तो वी कैन सी कि डिस्टली रूट्स कर्व्ड है ना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर इसको हम थोड़ा सा लिंग्वल करके देखें, दिस इज़ आवर लिंग्वल एस्पेक्ट, है ना, दिस इज़ आवर लिंग्वल एस्पेक्ट। ये हमारा डिस्टल है और ये हमारा मीजियल। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जस्ट फॉर ए ओवरव्यू। ये हमारा होगा डिस्टो लिंग्वल कस्प, है ना, ये होगा हमारा डिस्टो लिंग्वल कस्प। इस थर्ड मोलर में जो डिस्टो लिंग्वल कस्प है ना, वो इतना पुअरली डेवलप्ड है कि हम ऑलमोस्ट समटाइम सिर्फ 3 कस्प देख सकते हैं, बक्कल के 2 एंड 1 मीजियोलिंग्वल। देखो, मैं आपको डिस्टो लिंग्वल कस्प पुअरली डेवलप्ड है वो मैं ऑक्लूजली शो करता हूँ। लुक एट इट, लुक हियर, ये हमारा डिस्टो लिंग्वल कस्प था, है ना, डिस्टो लिंग्वल कस्प। ये लुक हियर, ये पूरा कवर करता है मीजियोलिंग्वल कस्प। ये होगा हमारा मीजियो बकल कस्प, ये होगा हमारा डिस्टो बकल कस्प। लुक हाउ पुअरली डेवलप्ड द डिस्टो लिंग्वल कस्प इज, है ना। ओके, सो बेसिकली 3 रूट्स आर जॉइंट टुगेदर, है ना। लुक, अगर मैं इसको आपका डायग्राम दिखाऊं, लुक है, किस तरह से ये हमारा फर्स्ट मोलर था, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर। देखो, रूट के बीच का जो डाइवर्जेंस है ना, वो भी किस तरह से कम हो रहा है। यहाँ पे तो बाइफर्केशन ही बहुत कम है ना थर्ड मोलर में। सो नाउ वी विल डील विद द बकल एस्पेक्ट। लुक, बकल एस्पेक्ट को अगर हम ऑब्जर्व करें ना, द क्राउन इज़ वेरी शॉर्टर, है ना। लुक, ये क्या है हमारा सर्वाइकल लाइन, इट इज़ आवर ऑक्लूजल एंड, है ना, इट इज़ आवर ऑक्लूजल एंड, दिस वन। तो जो सर्वाइको ऑक्लूजली जो डिस्टेंस है ना, इट इज़ वेरी लेस। मतलब ये सर्वाइको ऑक्लूजल जो डायमीटर है, इट इज़ वेरी लेस कंपेयर टू द अदर टूथ्स, अदर मोलर्स। ओके, हम इसके पहले एस्पेक्ट डिसाइड करते हैं, मीजियल और डिस्टल। तो लुक, डिस्टल काफ़ी डिस्टिंक्टिवली ये डिस्टल की तरफ टिल्टेड है, इनके एपेक्स, दिस इज़ आवर एपेक्स, है ना। ये होगा हमारा डिस्टल, दिस इज़ आवर मीजियल। सो हमने ये डिसाइड कर लिया, तो अभी हम कस्प की नेमिंग कर सकते हैं। ये कौन सा कस्प होगा? मीजियो बकल कस्प। और ये कौन सा कस्प होगा? डिस्टो बकल कस्प। वेरी गुड। जो इनके जो रूट्स है ना, दे आर फ्यूज हैं, जो कि हमको क्लियरली दिख रहा है ना।
इट बेसिकली फंक्शंस एज अ सिंगल लार्ज रूट, है कि नहीं? बेसिकली सिंगल लार्ज रूट की तरह फंक्शन कर रहा है। ओके तो डाइवर्जेंस अगर थोड़ा बहुत जो है वो भी है अपाइकल थर्ड में, है ना? अपाइकल थर्ड में बाइफर्केशन हो रहा है। इसके पहले कहाँ पे हो रहा था? सेकंड मोलर में, समवेयर इन द मिडल थर्ड, है कि नहीं? ओके ये किस में हो रहा था? सेकंड मोलर में, बट इन अवर थर्ड मोलर अपाइकल थर्ड में बाइफर्केशन हो रहा है और इतने कन्वर्ज है कि इट एक्ट एज अ सिंगल रूट। सो दिस इज अबाउट द बकल एस्पेक्ट। डील विद आवर लिंगुअल एस्पेक्ट। हम मीजियल और डिस्टल डिसाइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा, देखो रूट की टिल्ट, है ना? डिस्टल, ये होगा हमारा डिस्टल। ओके एंड इट इज़ आवर मीजियल साइड, ठीक है? यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस कस्प इज आवर डिस्टो लिंगुअल कस्प, और ये कस्प कौन सा है हमारा? मीजियो लिंगुअल कस्प। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने क्या बोला था? जो डिस्टो लिंगुअल कस्प है ना, इट इज़ वेरी पुअरली डेवलप्ड, देख, एंड इट इज़ ऑल्सो स्मॉलर ऑल्सो। द डिस्टो लिंगुअल कस्प इज पुअरली डेवलप्ड एंड शॉर्टर। इसलिए देख हमको बकल जो है ना, बकल कस्प भी दिख रहे हैं। ओके यहाँ पे बड़ा मीजियोलिंगुअल कस्प इज लार्जर, है ना? अगर लिंगुअल एस्पेक्ट देखें, हम लिंगुअल एस्पेक्ट का क्राउन देखें तो ऑलमोस्ट मीजियोलिंगुअल कस्प है ना, उसी ने सबसे ज़्यादा एस्पेक्ट कवर करा हुआ है क्राउन का। ओके यहाँ पे ये देखो लिंगुअल रूट हमको दिख रहा होगा, है ना? दिस इज आवर लिंगुअल रूट। ओके देयर इज ऑल्सो अ ग्रूव। अगर मैं ग्रूव आपको दिखाऊं, लुक हियर। ओके देयर इज अ ग्रूव ऑल्सो प्रेजेंट हियर, look here, there is a developmental groove also present lingual aspect के यहाँ पे। okay so now let's deal with the mesial aspect। okay बहुत ही छोटा सा है, look here, it is our mesial aspect। बाकी के दो एस्पेक्ट डिसाइड करते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमको एक सिंगल रूटेड दिख रहा होगा, है ना? ओके है ना? तो ये हमारा लिंगुअल पोर्शन, और दिस वन इज आवर बकल। ओके सर्वाइकल लाइन इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट, है ना? सर्वाइकल लाइन जो है इट इज़ ऑलमोस्ट स्ट्रेट, है ना? अगर यहाँ पे रूट लेंथ और क्राउन लेंथ को कंपेयर करें ना, कंपैरेटिवली टू द अदर एस्पेक्ट्स, जो रूट लेंथ है इट इज़ वेरी स्मॉलर इन कंपैरिजन टू द क्राउन लेंथ। जो इसकी जो मीजियल पूरी आउटलाइन है ना, मीजियल आउटलाइन इज पुअरली डेवलप्ड, है ना? ओके इट इज़ ऑल्सो इरेगुलर ऑल्सो। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्टल एस्पेक्ट, ठीक है? ये हमारा डिस्टल एस्पेक्ट है। अगर हम इसके बाकी एस्पेक्ट्स को अगर हम कंसिडर करें, दिस इज आवर डिस्टल एस्पेक्ट, ठीक है? मैं कहता हूँ कि ये बक्कल है और ये लिंगुअल है। ये मैंने डिसाइड कैसे किया, ठीक है? पहली बात तो मीजियल एस्पेक्ट की तरफ जो मीजियल आउटलाइन थी वो बहुत ही इरेगुलर और पुअरली डेवलप्ड थी, बट यहाँ पे जो डिस्टल आउटलाइन है, लुक एट इट, इट इज़ वेरी स्मूथ, है ना? एंड इट लुक्स वेरी वेल डेवलप्ड, है ना? और एक चीज़ है कि हमको यहाँ पे देख लिंगुअल रूट दिख रहा होगा, और ये दो हमें बकल रूट जो पहले फ्यूज है ना वो हमको दिख रहे होंगे यहाँ पे। ये जो रूट का फ्यूजन है ना, मैं तुम्हें समझाता हूँ। लो ये बकल सरफेस से एक रूट आया, ठीक है? अनदर रूट कम्स फ्रॉम द बकल सरफेस, फ्यूज हुए दोनों, ठीक है? अब लिंगुअल रूट एक का आ रहा है लिंगुअल की तरफ से, एंड इट गेट्स फ्यूज, सो द लिंगुअल रूट लुक्स थोड़ा सेपरेट। ओके इट लुक्स थोड़ा सा सेपरेट फ्रॉम द टू बकल रूट विच आर फ्यूज्ड बिफोर देम। ओके सो दिस इज आवर डिस्टल एस्पेक्ट, ठीक है? देख डिस्टल एस्पेक्ट में मोस्ट ऑफ द बक्कल सरफेस हमको दिख ही रहा होगा, ये है ना? मोस्ट ऑफ द बक्कल सरफेस एंड द ऑक्लूजल सरफेस इज ऑल्सो सीन, ठीक है? एंड लुक यहाँ पे जो सर्वाइकल से ऑक्लूजल तक जो है ना, जो डायमेंशन है ना, इट इज़ ऑल्सो स्मॉलर देन द मीजियल डायमेंशन ऑफ सर्वाइकल लाइन टू द ऑक्लूजल। यहाँ पे क्या है? स्मॉलर सर्वाइको
occlusal dimension, cervico occlusal dimension. Okay, so this is about the distal aspect. So let's start with the occlusal surface. ठीक है ना, ये हमारा occlusal surface है. इसके हम बाकी चारों एस्पेक्ट्स जो है ना वो डिसाइड कर लेते हैं. बकल एस्पेक्ट तो बहुत इजीली बोल सकते हैं, है ना. वी कैन सी द लार्ज कस्प्स. हमें पता है कि जो बकल कस्प होते हैं वो लार्जर होते हैं देन द लिंगुअल कस्प. ओके, एंड नाउ हाउ डू वी डिसाइड आवर, दिस इज आवर लिंगुअल, ये तो हमें पता ही है. ओके, नाउ हाउ डू वी डिसाइड आवर मीजियल एंड डिस्टल. ओके, हमें याद है कि जो डिस्टोलिंगुअल कस्प हुआ करता था इट इज स्मॉलर. हम देख सकते हैं यहाँ पे जो ये कस्प है ना, इट लुक्स वेरी पुअरली डेवलप्ड एंड स्मॉल, बल्कि ये कस्प इट्स लुक्स वेरी लार्ज, है ना. तो लो ये हो गया, दिस वन इज आवर डिस्टल सरफेस और ये हो जाएगा हमारा मीजियल. ओके, सो ये कौन सा कस्प था हमारा, डिस्टोलिंगुअल कस्प. ओके, वेरी गुड. अब जो इसकी जो ऑक्लूजल सरफेस की आउटलाइन है ना, इट इज़ ऑफ अ हार्ट शेप. वो ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला हार्ट नहीं, जो हार्ट जो हम बनाते हैं ना, लाइक दिस वन, इट्स, है ना, this heart shape. Okay, it has many supplementary grooves also. We can see the supplementary grooves, many supplementary grooves. ठीक है. So basically यहाँ पे जो functional cusp होते हैं ना, देर ये बस 3 होते हैं. Okay, look, the mesiobuccal cusp, the distobuccal cusp, है ना, the mesiobuccal, the distobuccal and the mesiolingual cusp. These are the 3 functional कस्प जो कि एक्चुअली फंक्शन करते हैं. ओके, सो दिस इज़ वेरी क्लियर. सो लेट्स एंड द वीडियो. सो थैंक यू गाइज. इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल.